जय हिंद। मोस्ट वेलकम। MGGS चैनपुरा। क्लास 8 Geography Chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Land, soil, waters are the resources which belong to abiotic resources and are most important resources, whereas natural vegetation and wildlife resources comes under the biotic resources. जैविक और अजैविक। जैविक के अंदर वेजिटेशन आता है और वाइल्ड लाइफ आती है, वेरेज लैंड, वाटर, सॉइल, ये जो रिसोर्सेज हैं ये अजैविक में आते हैं। सजीव और निर्जीव। लैंड लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट natural resources. Land covers about 30% of the total area of the Earth's surface. 90% of world populations occupies only 30% area of the land. The remaining 70% land is either sparsely populated or uninhabited. जो पृथ्वी के सरफेस पे 30% का भूभाग है वो लैंड है और इसका भी सिर्फ 30% हिस्सा है जो हम यूज करते हैं, जनता के लिए, लोगों के लिए यूजेबल है। 70% ऐसा है जो या तो बहुत ही दुर्गम है और वहाँ हम रह नहीं पा रहे हैं। लैंड इज unevenly inhabited due to various factors of land and climate, water, fertility, soils, etc. Normally, the sparsely populated, uninhabited areas are because of rugged topography, steep slope of the mountain, low-lying areas susceptible of water logging, deserted areas, thickly forested areas. The densely populated area of the world have plain, rivers, valleys which have suitable land for agriculture. हम लोग जहाँ रह रहे हैं ये अलग अलग फैक्टर होते हैं जो हमारे रहने पर इफेक्ट करते हैं, जिसमें एक तो ज़मीन का फैक्टर कैसा है, ज़मीन कैसी है, दूसरा क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, और पानी की उपलब्धता कैसी है ज़मीन में। नॉर्मली जो जनसंख्या कम होती है, इनहेबिटेड एरियाज होता है, वहाँ पर होता है एक तो रग्ड, भूमि का उपजाऊ ना होना, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, या फिर बहुत ज़्यादा डेजर्ट के अलावा थिकली फॉरेस्ट, वन जहाँ है, ऐसी स्थिति में ये आता है। अब हम बात करेंगे लैंड यूज, द यूज ऑफ लैंड। लैंड यूज रेफर टू द यूज ऑफ लैंड, use of different purpose such as agriculture, forestry, mining, building houses, road, setting up of industries. Factors affecting land use are of two kinds: physical factors and human factors. Physical factors include topography, soil, climate, availability of water. Human factors include population and technology. On the basis of the ownership, land can be classified as private and community land. Private land is owned by an individual or family members and is used for personal purpose like house in a private land. Community land is owned by community for common uses and can be used by anyone in the society like collection of fodder, fruits, nuts, medical herbs. These community lands are also called common property resources.
Demand of land by people is growing, but the availability of land is limited. The vast changes in land use pattern shows the cultural changes in our society. Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threat to the environment because of expansion of agriculture and construction activities. भूमि के उपयोग के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं, हमारे लिए ज़मीन का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए होता है, फॉरेस्ट्री जंगल वनों के लिए होता है, माइनिंग जो ज़मीन से हम मिनरल्स खोलते हैं, पदार्थ वगैरह निकालते हैं, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस रहने के लिए हमें जो है सिविलाइजेशन होती है, सिटीज़ बनती है, हमारे मकान बनते हैं, रोड्स बनती है, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योग धंधे लगाने के लिए भी होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो ज़मीन जैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में मुख्य होता है कि किस तरह की ज़मीन है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सब बातें इसमें आती है। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर होता है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये बात हो गई। उसके बाद प्राइवेट निजी भी हो सकती है ज़मीन, और ज़मीन सामुदायिक भी हो सकती है। सामुदायिक का उपयोग सब कर सकते हैं, निजी का निजी लोग ही उपयोग करते हैं। और इसी तरह से हमारी ज़मीन के अंदर डिमांड फॉर लैंड बाय द यूज़ ऑफ द ग्रोइंग, अभी हमारी ज़मीन का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे लिए रहने की ज़मीन ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगनी चाहिए, रोडें बनाते हैं, और लैंड को सबसे बड़ा नुकसान भी हो रहा है। और नुकसान हो रहा है, एक तो डिग्रेडेशन, उसकी गुणवत्ता में कमी आना, लैंड का स्लाइड हो जाना, ज़मीन मिट्टी जो है हमारी उपजाऊ न रहना, डेजर्टिफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थल फैलना, ये हमारी कुछ समस्याएं हैं जो आ रही है। और इसकी मुख्य वजह है कि एक तो एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ रहा है, कृषि के लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर केमिकल भी यूज हो रहा है, बीज खाद में काम हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा बन रही है। ये मेन कारण है हमारी ज़मीन के बारे में। नाउ, conservation of land resources, growing population and their ever-growing demand has led to large-scale destruction of forest over arable land, has created a fear losing these natural resources. Present rate of the degradation of land must be checked. The common method used to conserve land resources are afforestation, land reclamation, regulated use of the chemical pesticide and fertilizers, and check on the overgrazing. जमीन के अनउपजाऊ होने के पीछे जो प्रमुख कारण है, बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, फॉरेस्ट हमारे जो है वन का कटाई हो रही है। और इस समय डिग्रेडेशन का मेन है ज़मीन का चेक करना। फिर जो मेथड है हमारे यहाँ रिसोर्सेज को काम में लेने का, वो गलत है। लैंड को रिक्लेमेट कर रहे हैं, उसके अंदर केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, और फिर चारा के लिए चारागाह बना दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा चारागाह होने से भी ये डिग्रेड हो जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द सॉइल. Soil is a thin layer of grainy substance covering the surface of earth. पृथ्वी के ऊपर बहुत ही पतली मिट्टी के कणों की एक परत होती है जिसको सॉइल बोलते हैं. Soil is made up of the organic matters, minerals, weathered rocks found on earth. Soil profile refer to layers, structures which spread from parent rock to the top surface. Now, the four layers of the soil profile. मुख्य रूप से चार तरह की जमीन मिलती है हमें. टॉप सॉइल्स
ऑफ द ह्यूमस एंड वेजिटेशन, सबसे ऊपर जो है हम रहते हैं या हमारे वेजिटेशन हो रहा है. सेकेंड लेयर द सब सॉइल्स विद द सैंड, silt and clay. Third layer is the weathered rock material and fourth layer is the parent rock. जो रॉक होती है, बड़े कण होते हैं, मोटे होते हैं, वो सब इसमें आते हैं. फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल है वो बनती कैसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम. द मेजर factors of the soil formations are the under nature of the parent rock and climatic factors. The other factors soil formations are topography, soil of the organic material and time taken for composition of the soil formation. Parent rock determines the color, texture, chemical properties, minerals content and permeability of the soil. Relief determines the altitude and slope accumulated of soil. Flora, fauna, microorganisms affect the rate of humus formation in soil. Climate determination, temperature, rainfall, which influence the rate of the weathering and humus in process of the soil formation. Time determines the thickness of soil profile. It takes hundreds of years to make just 1 centimeter of the soil. 1 सेंटीमीटर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो बनती है, बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं. इसका मेजर फैक्टर्स है इनके पेरेंट रॉक से क्लाइमेट की वजह से अलग हो जाना, टुकड़े होना, फिर उसके जो है छोटे छोटे कणों में बनना. इसी तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं, उससे बन जाती है. सब कुछ ये है इसकी रॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बनी है, कैसे इसके कलर हैं, किस तरह से इसके मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें इससे मिलती है. नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कन्वर्जेंस ऑफ द मेजर, जो हमारी मिट्टी है, परत है, उसमें कुछ कमियां आ जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे. द मेजर थ्रेट टू सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन, ह्यूमन बीइंग द नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. मनुष्य ही सबसे बड़ा जवाबदार है अपनी ज़मीन की अनउपजाऊ बनाने में. डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रेन वाटर, लैंडस्लाइड, फ्लड्स आर द फैक्टर विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन. जो हम लोग काम करते हैं, जंगल काट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चारागाह बना रहे हैं और केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इतना ज़्यादा यूज करते हैं, रेन वाटर को भी हम यूज नहीं कर रहे हैं सही से, और इस तरह से ये फ्लडिंग आ जाती है. ये सब समस्या है जिससे हमारी ज़मीनें कमज़ोर हो रही है, मिट्टी कमज़ोर हो रही है. Soil conservation refer to the protection, efficient use of the soil and preservation of soil resources. The preservation of soil resources is very important. Mulching is the method in which the bare ground between plants is covered with a layer of the organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Contours barriers is method in which the stone, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of them to collect water. हमारे यहाँ जो ज़मीनों का उपजाऊपन मिटता है तो उसके लिए खेतों में हम लोग पानी रोकने की व्यवस्था करते हैं. देन टेरेस फार्मिंग, जो छत की तरह बनाकर जो ढलान होती है माउंटेन्स की, उनमें सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं उसको. ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेसेस आर मेड ऑन द steep slope so that the flat surfaces are available to grow crops. It reduces the surface runoff and soil erosion. In intercropping, different crops are grown in alternate rows and are sown at the different time to protect soil from rain wash. Contours
plugging in the process. Plugging parallel to the contours of the hill slope to form natural barrier to stop the water flowing down the slope. Shelters built are grown rows of the trees planted to check the wind movement to protect the soil cover. जो हमारी पृथ्वी है इसको बचाने के लिए हम कई काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, खेतों के साइडों में जो है एक बैरियर बना देते हैं, उससे भी रुकता है, और खेती बाड़ी करने के लिए फसलें बदल के रखते हैं, अलग अलग फसलें बोते रहते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहे, पेस्टिसाइड वगैरह कम यूज करें। और ये जो भी इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स होती है, अलग अलग जो है शाखें, जो फसलें हम बोते रहें, तो इससे और अलग रॉ भी हो सकती है, एक ही साथ कई फसलें भी बो सकते हैं और सीज़न के अनुसार बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ज़मीन का अच्छा उपयोग करें, ज़मीन को बचाएं, इसका जो है सेविंग करें, तो इस तरह से डिग्रेडेशन से हम बच सकते हैं। ये थी हमारी लैंड एंड सॉइल्स। नेक्स्ट टाइम इन सेकंड चैप्टर वी विल सी द वाटर्स एंड